جب دنیا ڈر رہی تھی تو میں نے خریدا اور اب مارکیٹ خود بول رہی ہے۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس وقت بہت انسرٹنٹی ہے، وار میں مت خریدو۔ آج میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جو مارکیٹ نے خود پروف کر دیا کہ ایسی 100 کل کچھ گھنٹے میں 5000 پوائنٹس اوپر چلا گیا، اتنی تیزی سے کہ پی ایس ایکس کا اپنا سرکٹ بریکر لگ گیا اپر سائڈ پر۔ اور یو ایس مارکیٹس، ایس اینڈ پی، نیسڈیک، ڈاؤ، انہوں نے اپنا بیسٹ سنگل ڈے ریکارڈ توڑا مہینے میں۔ جو لوگ ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس وقت پچھتا رہے ہوں گے، جن لوگوں نے خریدا وہ آج مسکرا رہے ہیں۔ میں ان میں سے ایک ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو پورا حساب دوں گا۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو خوش آمدید۔ یہ چینل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف باتیں نہیں کرنا چاہتے، جو ایکچولی کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ پچھلے کچھ ویڈیوز سے ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے ریسنٹلی کچھ 3 ایپیسوڈز ایسے کیے ہیں جس میں پہلے ہم نے بات کی کہ ان لوگوں کے لیے جو 190K پر جنہوں نے خریداری کی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر اب سٹک ہیں، اور دوسری ویڈیو تھی میں خرید رہا ہوں، جبکہ تیسری ویڈیو تھی میں اب بھی خرید رہا ہوں پی ایس ایکس اور انویڈیا۔ آج اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے، لیکن اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ویڈیو سٹینڈ الون بھی آپ کو کافی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ جب مارکیٹ اتنی تیزی سے پلٹتی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کیا یہ ایک اصلی ریکوری ہے یا صرف ایک ٹیمپرری باؤنس ہے؟ اور آپ کے کیا سوال ہیں، میں ان کا سیدھا جواب دوں گا۔ چلو سیدھا نمبرز پہ آتے ہیں۔ یعنی جو دن گزرا کہ ایسی 100 نے 5000 پوائنٹس کی اوپر کی جانب چھلانگ لگائی اور اتنا تیز گیا کہ پی ایس ایس کا جو اپنا سرکٹ بریکر ہے جو کہ 5000 کے بعد ٹریگر ہوتا ہے اور مارکیٹ ہالٹ ہو جاتی ہے ٹیمپریریلی، وہ بھی ٹریگر ہو گیا۔ مطلب یہ کہ مارکیٹ نے اپنی ہی خوشی میں بریک لیا۔ کب ہوا ہے ایسا آخری بار؟ بہت کم۔ کون سے سیکٹرز لیڈ کر رہے تھے؟ بینکس، جن میں میزان بینک، یو بی ایل، ایچ بی ایل، ایم سی بھی شامل ہیں۔ آئل، جن میں او جی ڈی سی، پی پی ایل اور ماری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیمنٹ اور فرٹیلائزر۔ اور یہ وہی سٹاکس ہیں جو میں اپنے منتھلی سپ میں خریدتا رہا ہوں۔ اب اگر یو ایس مارکیٹ کی بات کریں تو ایس اینڈ پی 500 نے 2.9% کا اپورڈ جمپ لگایا، یعنی ایک ہی دن میں 1.7 ٹریلین ڈالر کی ویلیو واپس آئی۔ نیسڈیک نے 3.83% کی چھلانگ لگائی، مہینے کا بیسٹ ڈے۔ اور ڈاؤ 1125 پوائنٹس اوپر گیا ایک ہی دن میں۔ کیوں؟ ایران وار کی ڈی ایسکلیشن کا سگنل ملا ہے۔ ٹرمپ نے سگنل دیا ہے کہ وار وائنڈ ڈاؤن کریں گے جلد از جلد، اور اس نے لکھا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر ٹو لانگ۔ لیکن یہ بات یقینی طور پہ نہیں کی جا سکتی بیکاز ٹرمپ کی طرف سے متضاد جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آتی رہتی ہیں، لیکن مارکیٹ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو شکر ہے پاکستانیوں کو محسوس کرنی چاہیے، پاکستان نے اس ساری صورتحال میں میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے۔ ارلیئر دس ویک وزرائے خارجہ ڈفرینٹ کنٹریز کے پاکستان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان سے ملاقاتیں کی، اور اس طرح جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ریسنٹلی چائنا کے ایک دن کے دورے پہ بھی گئے ہوئے تھے۔ ایک اوور آل بڑی زبردست قسم کی ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ ٹرمپ کا جو 15 پوائنٹس کا پیس پلان ہے، یو ایس انوائے اسٹیو وٹکاف نے خود کنفرم کیا ہے کہ وہ پاکستان کے تھرو ایران کو پہنچایا گیا ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پاکستان اس ٹیبل پر ہے۔ اپریل 6 ڈیڈ لائن ہے۔ ٹرمپ نے انرجی پلانٹس پہ سٹرائکس پاز کی ہیں، کچھ دن ہیں، اور مارکیٹ نے یہ ساری چیزیں پرائس ان کی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یار علی بھائی یہ تو سب فیک ہے، یہ تو مارکیٹ پمپ ہے اور یہ پھر ڈمپ بھی ہونا ہی ہے، آج مارکیٹ اوپر ہے تو کل نیچے جائے گی۔ تو سنو، میں پروفیسیز نہیں کرتا، میں پیٹرنز دیکھتا ہوں، اور پیٹرن یہ ہے، وار کی خبر آتی ہے تو مارکیٹ گرتی ہے، جب بھی امن کا سگنل آتا ہے تو مارکیٹ اوپر کو اٹھتی ہے۔ جو ایسے وقت میں خریدتا رہا وہ فائدے میں رہا۔ میں آپ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کی طرح۔ کچھ لوگوں نے کمنٹس میں یہ بھی پوچھا تھا کہ اپنا پورٹ فولیو دکھائیں، تو میں نے وہ لاسٹ ویڈیو میں دکھا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پچھلی 2 ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اس ڈپ کے دوران پی ایس ایکس میں خریداری جاری رکھی ہے۔ منتھلی سپ کیا، اس میں لکی سیمنٹ اور میزان بائی کیا۔ اس کے علاوہ یوزلی میرا فوکس ہوتا ہے 4 کور کمپاؤنڈرز پر، جو میزان بینک، ماڑی، لکی سیمنٹ اور سسٹمز لمیٹڈ ہیں۔ میں ان پر کانسنٹریٹ کر رہا ہوں، اور یہ 65% ہے میرے پی ایس ایکس پورٹ فولیو کا۔ اور میں نے انویڈیا بھی خریدا یو ایس مارکیٹ میں جب سب ڈر رہے تھے، کیونکہ میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جو اے آئی انفراسٹرکچر ہے یہ ایٹ لیسٹ 1 دہائی کی گیم ہے، اور کوئی وار اس کو روک نہیں سکتی۔ کیا دل تھوڑا گھبرایا تھا؟ جی بالکل، آخر میں بھی انسان ہوں۔ لیکن ایسے میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، کیا میرا تھیسس بدلا ہے یا صرف مارکیٹ کا موڈ بدلا ہے؟ چونکہ تھیسس نہیں بدلا تھا اس لیے میں خریدتا رہا۔ اور اب جب علیشا ری انوینٹ جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں 1-to-1 کنسلٹنگ کے لیے بکنگز آتی رہتی ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ریسنٹلی اس کے اندر کچھ اضافہ ہوا ہے، جس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب لوگوں میں سیریسلی انویسٹنگ کو سمجھنے اور لانگ ٹرم ویلتھ بلڈنگ پہ فوکس کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اور ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی پچھلے 2 دنوں میں تقریباً 50 نئے ممبرز آئے ہیں، اور تقریباً اب ہمارا جو واٹس ایپ کمیونٹی ہے وہ تقریباً 325 ممبرز کی ہو چکی ہے، اور جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ سیریس ہیں۔ میں وہاں پر پی ایس ایکس، یو ایس اسٹاکس اور ریئل اسٹیٹ کی
अपडेट्स वहाँ उनसे साथ शेयर करता हूँ और उससे वो सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो दूसरों से भी लाजमी शेयर करते होंगे। चूंकि उन्हें वैल्यू मिल रही है तो वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है ये फ्री है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। रिसेंटली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें हमारे व्यूज़ तकरीबन डबल हो गए हैं। मतलब ये कि जो ये कंटेंट है ये काम कर रहा है, और आप लोग लाजमी तौर पे ये जानना चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, क्या इस वक्त अपना हाथ रोक देना है या ख़रीदना है या बेचना है। तो इस चीज़ को आप डिटेल में समझना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच कि आपकी जानिब से जो कमेंट्स हमें रिसीव हो रहे हैं उनका मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि सारों का जवाब दूँ। तो प्लीज़ उनको कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें। और ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि आपको कुछ मिल रहा है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आप ये बात अपने दोस्तों तक भी पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया, सीरियसली। ठीक है जी, मार्केट ऊपर गई तो अब क्या करना है। 3 तरह के लोग हैं इस वक्त। टाइप 1 वो लोग हैं जिन्होंने जनवरी या फरवरी में ख़रीदा हुआ है, जो 190K के करीब जिन्होंने खरीदारी की थी और वो अभी भी स्टक हैं क्योंकि वो अभी भी लॉस में होंगे, क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी थी। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा बाउंस आया है तो घबराना नहीं है। सीधा जवाब आगे थोड़ा Q&A में आएगा। टाइप 2 लोग वो हैं जो साइड लाइन्स पर बैठे हुए हैं। आपके पास अभी भी विंडो है, लेकिन ये सब कुछ सीधा हो गया वाले माइंडसेट से ना आना, क्योंकि मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है। अप्रैल 6 आने वाला है और उसके बाद हो सकता है टेंशन फिर बढ़ जाए। और ऐसे में भी इस वक्त भी वॉर मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है, क्योंकि बमबारी का सिलसिला ईरान की तरफ से भी और ईरान के ऊपर भी इसराइल और US की तरफ से, और जबकि ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर जारी है। तो एक ही बारी में सारा कुछ मत लगा देना। टाइप 3 वो लोग जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस वक्त कंफर्टेबल हैं। आप अपनी कोर पोजीशंस को होल्ड करो, वीकर पोजीशंस को रिव्यू करो और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क देखो। मेरा जो PSX पोर्टफोलियो है उसका जो 65% है, उस जगह पे मेरे 4 कोर कंपाउंडर्स हैं, जिनमें मिज़ान बैंक सिस्टम्स लिमिटेड, माड़ी और लकी सीमेंट शामिल हैं। ये 4 ही क्यों? क्योंकि ये 4 कंपनीज पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल ग्रोथ का प्ले हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल ग्रोथ की स्टोरी है, क्योंकि इनमें बैंक है, टेक है, सीमेंट है और एनर्जी है। और ये वो सेक्टर्स हैं जो अगले 10 साल में ग्रो करेंगे और ये कंपनीज उनके अंदर लीडर हैं। बाकी जो 35% है वो अपॉर्चुनिस्टिक प्ले हैं। इनमें ज़्यादा रिस्क है लेकिन इनमें ज़्यादा रिवॉर्ड भी हो सकता है। और एक ज़रूरी बात, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको मालूम है हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, रिस्क टॉलरेंस भी अलग होती है, टाइम होराइजन भी अलग होता है और कैपिटल भी हर एक का एक जैसा नहीं होता। जो मैं करता हूँ ये सिर्फ एक रेफरेंस है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो अपना फैसला सोच समझ के करें। एनवीडिया जो मैंने वॉर में खरीदा था वो अब ऊपर है। थीसिस वही है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलहाल कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में टेस्ला एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है जिससे मैं अवेयर हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन सॉलिड हैं। और इसके साथ साथ गोल्ड ETF है जो हेज के तौर पे काम कर रहा है। ऑयल ने जो किया वो गोल्ड ने रिफ्लेक्ट किया। चलो अब आते हैं डायरेक्ट आपके सवालों की जानिब। जो क्वेश्चन आप मुझसे रिसेंट वीडियोस में पूछते आ रहे हैं, कुछ का मैंने जवाब दे दिया लेकिन कुछ का मैं अभी तक नहीं दे सका। तो मैंने 5 ऐसे सवाल पे किए हैं जो डिफरेंट थीम्स के हैं और उससे आई एम श्योर कि आप सब लोगों की लर्निंग होगी। पहला कमेंट हमें आया है कुवैत से। उन्होंने कहा है जी कि मैं समझता हूँ कि जो PSX इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ये एक अपॉर्चुनिटी है। पहली बात, ये सोच बिल्कुल ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि PSX इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। बेशक यूरोप में हो, गल्फ़ में हो, US में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आप रुपीज़ में अर्न नहीं करते तो पाकिस्तानी रियल इस्टेट या PSX दोनों आपके लिए एक करेंसी प्ले भी हैं। रुपी जो है वो हिस्टोरिकली डेप्रिशिएट होता है, लेकिन अच्छी कंपनी का स्टॉक ज़्यादा ग्रो करता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात, लेजेंड 46 का जिक्र करना चाहता हूँ। हमने इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली एक इकोसिस्टम बनाया है। ना सिर्फ वो यहाँ पे आके ठहरते हैं बल्कि वो यहाँ पे फोकस होके प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वाईफाई और हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में एक कैफ़े भी मौजूद है। तो हमने एक इकोसिस्टम बनाया ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो दूसरे कंट्री से आके या फिर दूसरे सिटी से आके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन ऐसे इवेंट्स करवाते रहते हैं, पॉडकास्ट, फायरसाइड चैट्स वगैरह, जिसकी वजह से एक बड़ा ही इनेबलिंग और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो अगर आपका फोकस पाकिस्तान की रियल एस्टेट की जानिब है तो ये बिल्कुल उसी टाइप का प्रोजेक्ट है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सूट करता है। क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ तो आई फुली अंडरस्टैंड योर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे जबकि जो बाकी सारी मैनेजमेंट है वो हमारी तख्लीक की टीम करेगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अलीशाह रीइन्वेंट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दूसरा कमेंट हमें आया है और उन्होंने बात की है कि उनका 10 साल का
होराइजन है इन्वेस्टमेंट्स का, और उन्होंने कुछ स्टॉक्स बताए हैं कि ये इनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई कि 10 साल का होराइजन बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी फेवरेट चीज़ है कि आप लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करें। ये सोच बिल्कुल सही है। आपके जो पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस करूंगा। इनमें से कुछ जेन्युइनली अच्छे बिजनेसेस हैं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 10 साल इन्वेस्ट करते हुए ये चीज़ ज़रूर अपने आप से पूछता, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्ले हैं अगले 10 साल के लिए। सीमेंट में लकी है, बैंक्स में मिजान बैंक है, टेक में सिस्टम्स है, और एनर्जी में माड़ी है। मिड कैप्स में हाई रिस्क होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें हाई रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन आपको इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। वॉर जैसे इवेंट्स में ये ज़्यादा गिरती हैं। अगर आपने कुछ पोजीशन इसमें रखनी है तो रखें, लेकिन फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए। और एक चीज़, आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल मौजू है एएस कम्युनिटी के लिए, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना जरूर कंसिडर करें, और ये फ्री भी है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन हमें आया है यूरोप से, और उन्होंने भाई ने बात की है कि वो यार सीरियसली आपने जो किया ना वो तो टेक्स्ट बुक है। फिक्स्ड डेट पे सिप, डिवर्सिफाइड अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स, 70,000 रुपए हर महीना, मार्च 2025 से। तो ये 1 साल से ज्यादा हो गया। आपने ये वॉर में भी जारी रखा है, मैं श्योर हूँ, तो ये आपने सही किया है। एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सिप में सिप का जो जादू है वो ये नहीं है कि आप सही वक्त खरीदते हैं। जादू ये है कि आप गलत वक्त का इंतजार नहीं करते। आपने 1 साल के अंदर रेट कट्स भी देखे हैं, जंगों जैसी सूरत हाल भी देखी हैं, मार्केट क्रैशेस भी देखे हैं, ये सब कुछ देखा और अपनी स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ी। ये एग्जैक्टली वो माइंडसेट है जो हमारी जो व्हाट्सएप एएस कम्युनिटी है उसके लिए बना है। फ्यूचर वर्कशॉप्स, लीडर मीटअप्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें शेयर कर रहे होते हैं, तो इसको ज्वाइन करना जरूर कंसिडर करें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हमें पाकिस्तान से मिला है, और एक भाई ने कहा है कि मैंने जनवरी और फरवरी में खरीदारी की थी और इस वक्त मैं ठीक ठाक लॉस में हूँ। तो जनाब ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीक लेवल्स के ऊपर खरीदारी की हुई है। मैं सीधा बोलता हूँ कि आपने गलती नहीं की। टाइमिंग टफ थी और जनवरी फरवरी में मार्केट ऊपर गई हुई थी, और फिर वॉर आ गई, और इसमें पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की वॉर चल रही थी उसने भी कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद फिर ईरान और अमेरिका और इसराइल की वॉर स्टार्ट हो गई। लेकिन एक सवाल अपने आप से ज़रूर करें कि क्या मैंने जो कंपनी खरीदी थी क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है? अगर हाँ, तो फिर वो पोजीशन अभी भी वैलिड है। मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को वापस ले आती है, और ये हमेशा हुआ है। लॉस बुकिंग एक डेंजरस गेम है। आप 2 बार हारते हैं, पहले गिरावट में और फिर रिकवरी को मिस करके। रिकवरी जैसे आज है, ये किसी को पता भी नहीं चलता कि कब आएगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी ऐसी पोजीशन रखी थी जो मैंने होल्ड की हुई थी और वो माइनस में चली गई, लेकिन मैंने उन्हें होल्ड किया और कुछ में एवरेज डाउन किया, खासकर कोर कंपाउंडर्स में, और पेशेंस ने रिजल्ट दिया। आपका जवाब सिंपल है, अगर कंपनी फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है तो होल्ड करो, पोर्टफोलियो को काम करने दो। आखिरी सवाल लेता हूँ जो पाकिस्तान से ही आया, और इसमें एक भाई है, उन्होंने कहा है जी कि ये मार्केट सारी 2 नंबर है और ये पंप एंड डंप जो होता है ना, मार्केट मैनिपुलेटेड है और ये मैनिपुलेशंस चलती रहती हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के भी ये कमेंट्स जो है ना वक्तन फवक्तन में लाजमी आते रहते हैं, जिसमें कुछ स्केप्टिसिज्म पाया जा रहा होता है। तो ये मैं सवाल ज़रूर शामिल करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑनेस्ट सवाल है। तो सुने, मैं समझता हूँ स्केप्टिसिज्म को और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। पीएसएक्स में जो नॉमिनल रिटर्न्स का हिस्सा है वो इन्फ्लेशन की वजह से आया था, ये बिल्कुल सच्ची बात है। रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो नॉमिनल इंडेक्स ऊपर गया, लेकिन एक डिस्टिंक्शन करो नॉमिनल रिटर्न्स में और रियल रिटर्न्स में। मिजान बैंक का ईपीएस बढ़ा है और सिस्टम्स ने एक्चुअल रेवेन्यू ग्रो किया है। लकी ने सीमेंट वॉल्यूम्स डिलीवर किए हैं और माड़ी ने एक्चुअल कुएं ड्रिल किए हैं। डिविडेंड यील्ड्स, अर्निंग ग्रोथ और बैलेंस शीट्स, ये सिर्फ कोई आर्टिफिशियल पंप नहीं है, ये रियल बिजनेस परफॉर्मेंस है। पंप एक्यूजेशन वाली बात तो मैं सीधा कहता हूँ कि जो भी स्टॉक मैं होल्ड करता हूँ मैं खुल के बताता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे पास में भी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करता रहा हूँ। अगर मैं मिजान बैंक कह रहा हूँ तो मैंने खुद इसमें पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई पेमेंट नहीं लेता उनसे, ना ही कोई कमीशन लेता हूँ। स्केप्टिक होना अच्छी बात है और रियलिस्टिक होना भी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन में रखता है। लेकिन जो ब्लैंकेट सिनिसिज्म होता है वो आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करा देता है। 2019 में पीएसएक्स 33,000 पे थी और आज 150K से भी ऊपर है। जो तब सिनिकल था उसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो अब जनाब रिकैप करते हैं, और अगेन शुक्रिया इन सवालों का, और अपने क्वेश्चंस कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करते रहें और मैं कोशिश करूंगा सबके पढ़ के उनका जवाब दे सकूं। वॉर ने मार्केट को गिराया, लेकिन जो खरीद कर बैठे रहे वो फायदे में है। डीएस्केलेशन के सिग्नल्स आए तो मार्केट ने 5,000 पॉइंट्स की अपवर्ड छलांग लगाई और यूएस मार्केट्स ने अपना बेस्ट डे बनाया। ये सब एक रात में नहीं हुआ, ये उन लोगों का रिजल्ट है जिन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, डर को एक साइड पर रख के। अब आपके लिए नंबर 1, अगर आप सीरियस हैं तो 1-to-1 कंसल्टिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या कैलेंडर से डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इस पे मैं पर्सनली बात करता हूँ आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। नंबर 2, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें,
یہ بالکل فری ہے. 325 لوگ پہلے ہی وہاں پہ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں, اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. نمبر 3, اگر آپ لیجنڈ 46 کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں, ریئل انکم جنریٹنگ ایسٹ, تو ویب سائٹ پہ جائیں یا کمنٹ کریں, تخلیقی ٹیم آپ کو ریچ آؤٹ کرے گی. یاد رکھیں, یہ چینل صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایگزیکیوشن کے لیے ہے. ڈر سب کو لگتا ہے لیکن کچھ لوگ ڈر کے باوجود بھی خریدتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آئی, اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو سائیڈ لائنز پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کا جو ایک شیئر ہے وہ کسی بھی آدمی کی پوری انویسٹنگ سوچ اور اس کی انویسٹنگ اسٹریٹجی بدل سکتا ہے. اور ہاں, کمنٹس کا سلسلہ جاری رکھیں اور بتائیں کہ آپ کہاں موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ انویسٹمنٹس میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی اسٹاک یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے. سو شیئر ان دا کمنٹس اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.